Class 7. I have already completed the synthetic fiber and natural fiber and fabrics. But it is a matter of pleasure that you are asking me many questions. And first question, that is from intro, that what is difference in between the fiber and fabrics? I am explaining you in the easiest way. Just take this. These are called as small bead-like structure and make the mala. And here these structure are called as monomer. मोनो माने यूनिट, यानी एक मालिक्यूल. और ऐसे कई मालिक्यूल ऐसे लगते चले जाएं तो एक धागा बन के तैयार हो गया. इसी को हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं. अब इस फाइबर को अगर हम ये देखिए, इट मीन्स अगर इसको देखें तो ये एक फाइबर हुआ. इसको अगर इंटरवीवन करके क्लॉथ बना दें तो ये फैब्रिक्स कहलाएगा. दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन द फाइबर एंड फैब्रिक्स. नाउ कम टू द टॉपिक. यू नो बेटा, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. And that is very important also, because food, shelter, cloth, that is the major necessity of life, in which we are going to study the cloths, which is the sign of the civilization from the post-historic era, जहाँ से आदमी ने सीखा कि वस्त्र कैसे पहने जाएं, कपड़े कैसे पहने जाएं. और पहले उसने मृग छाला और तमाम जानवरों को मार करके उनकी छाल से अपनी बॉडी को ढकता था. फिर धीरे धीरे उसने ये सोचा कि हम पेटल, सेपल्स, फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर जो कि दिखाई दे रही है, ऐसी सब चीज़ों को हम अपने हाथ से बना दें. और वही पर नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, एंड दे हैव डिस्कवर्ड द फाइबर वर्ड and made the so many fiber which are resembling to the nature. कोई कह नहीं सकता दोनों में डिफरेंस है. तो फर्स्ट थिंग इज सिंथेटिक फाइबर. आई हैव taught you natural fiber also. In summary trial I am saying, first thing it will be asked that what is the fiber. It means many monomers makes a fiber, that is unit of cloth, and unit of fiber is called as monomer, and the long chain of monomer is called as polymer. It means polymer is responsible for making the fiber. Two type of fibers are there. One is natural. It means each and every plant you know that has cellulose, that is the hard material, and when it is treated with the chemical, it is converted into the fiber, like the natural synthetic fiber. And it means from each vegetation we can get the fiber in the form of jute, hemp, rhea. And now the question arises that what is the difference in between the fabric and fibers. This is, it means each line there are questions. Now I am coming to natural fibers and synthetic fiber. What is the difference in between those two? Synthetic we are synthesizing in the lab artificially. It means terrycot, rayon, decron, acrylon, bakelite, PVC, all these are the example of the synthetic fiber. Synthetic fiber are harder, their tensile strength is too much, so many qualities are there, their lifespan is better, but they can't cool our body as the nature do. It means perspiration, evaporation of sweat from the body and cooling of the body, that is impossible. Although the life of polythene and other thing are polyfiber made by the lab,
दैट इज नियर अबाउट द 45,000 ईयर्स। मैं मानता हूं कि नेचुरल और सिंथेटिक में बहुत बड़ा अंतर है। नेचुरल वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा, क्योंकि जैसे वो किसी जानवर की जिंदगी को सेफ रखता है, बाल, और उन बालों से हम ऊन बनाएं, वूल बनाएं, तो वो क्या है, वो जैसे उनके बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखता है, वैसे आपके भी बॉडी को सेम रखेगा। इट मीन देयर विल बी नो हार्म टू बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। बट when we come to the synthetic have the longevity of life, less costly, and durability is there. Cheap and best is good quality of the synthetic. But when we think comfort of the body, synthetic can't give, because in the synthetic evaporation of sweat is impossible. तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर which are obtained from the either plant or animal. When it is obtained from the plant, that is the main component of cellulose, and when it is obtained from animal, that is the keratin protein, which is called as wool. And silk is also protein. There should be fully demarcation line in between the two. Remember it कि नेचुरल जो है एकदम अलग है और आर्टिफिशियल एकदम अलग है। अब आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए नेचुरल तो हम जान गए कि उसको हम बनाते हैं खुद ही, कॉपर सल्फेट किसी पौधे की ब्रांचेज को ले लें प्लांट के, और उस ब्रांचेज को लेकर के उससे हम लुगदी बनाएं जिसको पल्प कहते हैं, और उसमें अमोनिया और कॉपर सल्फेट डाल दें, और 21 दिन रखने के बाद उसको सिरिंज से लेकर के फिर पुश करें तो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती चली जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, रेयान। उसी से बैंडेज बनती है, उसी से कॉटन बनती है। उसकी एब्जॉर्बिटी क्या है, 90% है, यानी 90% पसीना वो सोख लेगा, लेकिन टेरिलीन टेरिकॉट ये नहीं सोख सकते। तो अब ये बात आती है कि what is difference in between the synthetic and natural. Now come to the another point. I am going to start the wool, processing of wool. So many questions are asked. What is the wool? Wool is a proteinous fiber, have the tensile strength strong. That is called as wool. How many steps are involved in the processing of wool? Next question will be asked कि कौन कौन से स्टेप हैं जिससे कि वूल बनाया जाए, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वूल। वूल की सबसे बड़ी बात यह है कि एयर को वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, और वूल क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। इसलिए अगर कपड़े से और ऊन से अगर अपने बॉडी को ढका जाए तो बाहर की हीट ना अंदर आएगी, ना अंदर की हीट बाहर जाएगी। इस कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वूल को। अब वूल का फर्स्ट स्टेप है बेटा, वूल का फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, एज आई हैव टॉट यू। फर्स्ट स्टेप इन सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हर आदमी ये चाहता है कि ऐसे जानवर से हम वूल लें जिसकी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, लाइफ लॉन्ग वो जानवर रहता हो। जैसे याक है, गोट है, इनमें बाल खूब होते हैं, उन्हीं बाल से बनाया जाता है स्वेटर, उसको वूल कहते हैं। तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी कीमत कम हो, पैसा कम लगता हो उस इंडस्ट्री को बनाने में। और सबसे बड़ी बात यह है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब कि ऐसी क्रॉस ब्रीड को लें जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हेयर देता हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियरिंग। इट मीन्स हम
केयर, रियरिंग एंड केयरिंग, दैट इज द बोथ सेम स्टेप। कि हम अगर कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं उनकी, और उसमें भेड़ बकरियाँ पालना चाहते हैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि उनको खिला पिला करके तंदुरुस्त करें, जिससे कि उनके अंदर हेयर्स का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो। ये स्टेप क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। फिर स्कोरिंग, उसमें क्या करते हैं, हम बाल को कट करेंगे, यानी जब बाल बड़े हो गए, वो एनिमल बड़ा हो गया, तो उससे वो निकालने की स्टेप चालू होगी। स्कोरिंग में क्या है, उसको हेयर्स को कट करके जब हम काटते हैं उसी तरीके से जैसे आदमी को कोई बाल निकाल दिया जाए और गंजा कर दिया जाए, तो होगा क्या, उसमें डैंड्रफ लगा होगा, उसे हम फ्लीस कहते हैं। हेयर अलॉन्ग विद डैंड्रफ, दैट इज कॉल्ड एज फ्लीस। यानी ऊन बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फ्लीस को हटाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद का स्टेप, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज फॉर्म, व्हाट इज द फ्लीस? नाउ अनदर स्टेप कम्स, डाइंग एंड क्लीनिंग। फिर हम क्या करते हैं, उस ऊन को कास्टिक, डिटर्जेंट, तमाम चीज़ों में धोते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा वो ऊन अलग हो जाए और फ्लीस यानी जो डैंड्रफ लगा है वो अलग हो जाए। क्योंकि जानते हो आज जो जितनी भी वायरल डिजीज फैल रही हैं, वो अगर देखा जाए तो ये जितने भी एनिमल हैं उनकी स्किन में जो डैंड्रफ है उन्हीं में डेवलप करने वाले वायरस से फैल रही है। तो हो सकता है ये हैजर्ड होगी, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि इन फ्यूचर ये भुखमरी जो मजदूर काम करते हैं वो बेचारे शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं केमिकली, और ट्रीट करने के बाद फाइबर निकालते हैं। फिर दूसरी बात आती है सॉर्टिंग। मान लीजिए उस ऊन को मैंने डील किया, फ्लीस से मैंने चमड़ी सब अलग कर दी, और फिर उसके बाद का स्टेप क्या आया, सॉर्टिंग। फिर हम छांटते हैं कि कौन सा वूल, अगर देखा जाए तो दो पार्ट हुए, हेयर को ही देखें तो इधर का पार्ट तो हार्ड है और अंदर का पार्ट सॉफ्ट है, तो इसी को दो फ्रेगमेंट में बांटने। ऊपर के बाल यानी वो तो बनाएंगे कोर्स फाइबर, और ये सॉफ्ट फाइबर होंगे अंदर वाले, जिससे कि महंगा ऊन बनेगा, और कोर्स फाइबर से सस्ता ऊन बनेगा, जिसको लोई कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं, ये तमाम चीज़ें। और जो इनर लेयर है उससे कोट और ये जो फाइब्रिक्स है वो बनता है, वूलन कपड़े। अब सॉर्टिंग के बाद का स्टेप क्या आया, डाइंग। हम ये जानते हैं कि वह केवल नेचर में देखा जाए तो ज़्यादातर एनिमल जो भेड़ बकरी या याक की बात कर रहे हैं, ये वह केवल 3 कलर में, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन मार्केट में जो वूल बिकता है वो कम से कम 50 कलर में। तो ये कैसे? इट मीन्स सो मेनी डाइज आर देयर, लाइक द एजो डाई, मेलेकाइट, यूरियोक्रोम। इससे सबसे हम रंग करके उसको अलग कर देते हैं। फिर डाइंग के बाद का स्टेप क्या है, उसका यार्न। इट मीन कि क्या है कि उसके फाइबर को जैसे तकली बुनी जाती है या चरखे से धागा बुना जाता है, उस तरीके का स्टेप करते हैं, जिसे यार्न कहते हैं। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और फिर जब फाइबर बन जाते तो उन्हीं से क्लॉथ्स बनाए जाते। नो डाउट आदमी हमेशा क्यूरियस रहा है, वो ये जानता था कि जब एनिमल बिना कपड़े के रह सकता है, सर्दी सह सकता है, गर्मी सह सकता है, तो उसने क्या किया कि उसके हेयर को काट लिया। भाई जाड़े में तो चलो जानवर के लिए अच्छा है हेयर, जो कि हीट को अंदर आने नहीं देगा एयर की ट्रैपिंग के कारण। लेकिन गर्मी में वही जानवर देखो एसी में रखना पड़ता है, तो गर्मी के समय उसके हेयर्स को काटे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, व्हेन रियरिंग और दी वूल प्रोसेस इज अडॉप्टेड इन विच सीजन, दैट इज समर। एंड चूंकि बात ये गर्मी में उसको गर्मी लगेगी, तो गर्मी ना लगे इसलिए उसको काट दिया गया, तो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम ऊन गेन करेंगे। लेकिन जाड़े में क्या होगा,
जाड़े में उसके हेयर्स नहीं कट किए जाते, वो ग्रोथ के